very good afternoon to the respected guests, principal sir, lecturers, masters, teachers, and my dear classmates. I am Farhanisa of class 12. It's a pleasure for me to speak here at this farewell party on behalf of my class. Finally, the day has come where all the students of class 12 need to leave our childhood behind and step into the world to create our own paths in life. Each of us has a dream, and I thank my school for making me capable enough to achieve our goals and dreams. On this farewell event, I take an opportunity to express my gratitude towards my teachers. I thank our teachers for all the lessons they have taught us. Your kindness and caring nature is the reasons that we all today are ready to face challenges with smile and courage. I would like to thank all my teachers and friends with whom I have shared my sweet moment. I thank you all for all the fun and laughter you shared with me. It's so difficult to say a final goodbye to all of you. I shall always cherish the moments I spent in school. I request everyone to forgive me in case if I hurt you during my school days. I wish a bright and prosperous future to everyone present here on this note. I end my speech. I thank you. Class 12, please come on the stage and deliver a speech on this occasion. अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मोहतरम काबिल एहतराम वदीगर असातिज़े इकराम और बाहर से आए हुए खुसूसी मेहमान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर स्टाफ की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस अलविदा तरकीब को मुनक्किद किया। मैं मेरे अहम जमात बारहवीं जमात के लिए एक शेर कहना चाहूँगी। एक घड़ी अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़ज़ाए दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। अब मैं अपने अस्ताज़ा से मुखातिब होती हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ तालीम दी और हमारे किरदार साज़ी की। जिस तरह हर एक उस्ताद ने अपनी मज़मून को बड़ी तर्जमाई के साथ मुकम्मल किया और हमारे ज़मीर में उतार दिया, काबिल तारीफ है और हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। और इस अदारे के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब करे। और मैं आखिरी शेर से इस बात को मुकम्मल करना चाहती हूँ। बता रहा है चेहरों पे ज़ुर्फ़ का इल्म, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा है, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Principal sir, lecturers, teachers, and my dear schoolmates, good afternoon. I am Shaista from class 12. It is pleasure for me to speak here at this farewell party on behalf of my class. I would like to thank my classmates and friends to give this opportunity. Today, as our farewell party is going to be the last day for us in this school. We are overwhelmed with your love and respect. It is like a journey to get admission to this school, and a young kid who does not know how is even hold a pencil. With his height is almost equal to my teachers from here. From here we all will go to a bigger world in the form of school. But it is the hard work of the teachers and made us capable enough to step out this school. On behalf of my class, I would like to say that we
never forget all the sports and care given by our teachers. Thank you. I would like to invite Zahida, please come on the stage and deliver a speech. कैसे शुरू करूं कुछ समझ नहीं आता, कैसे शुरू करूं कुछ समझ नहीं आता, आपकी विदाइयों से हमारा दिल भर आता। माहौल बन जाता था अलग जब आप हमारी क्लास में आते थे। डियर फेवरेट टीचर, जिंदगी की हर कहानी जब आप हमें सुनाते थे। डियर टीचर्स, थैंक यू टीचर, हमारी लाइफ में आने के लिए, गिरते वक्त हमें संभालने के लिए। हमने हम जैसे बच्चों को कैसे झेला है। हमारी क्लास भी अब खत्म होने को ही है, हमारी क्लास अब खत्म होने को ही है, बस वो आपकी यादें साथ ले जाएंगे। किताबों की अंत छोड़कर जिंदगी की हर बातें आपकी साथ ले जाएंगे। खुश होते थे हर बच्चा जब आप हमारी क्लास में आते थे। खुश होता था हर बच्चा जब आप हमारी क्लास में आते थे। बोर ना हो जाए कोई, इसलिए आप सारी इंटरेस्टिंग चीजें करवाते थे। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल में होती है खुदा को याद करने से। Now I request Nishad Khan to please come on the stage. Respected Dr. Sir, Azmi Sir, dear Usatza Ikram, प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए और आपके लिए भी एक ऐसा दिन है कि जिसमें हमारे जज्बात जो हैं वो थोड़े मिले जुले जज्बात मैं कहूँगा, क्योंकि आप लोग जो है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कम से कम 12 साल लगा के यहाँ से पार हो रहे हैं। तो हम लोगों के साथ भी आपका कुछ वक्त जो गुजरा है, मुझे तो बस जन्माई हुए यहाँ पे आए हुए, लेकिन आपके साथ मेरी जो लगन हो, आपके साथ लगाव जो रहा बहुत अच्छा रहा। मुझे आपके जाने का फील तो हो रहा है मुझे, लेकिन ये दुनिया की रस्म रिवाज रीत है, ये रिवायत चली आ रही है। फिर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे भी कहा गया है, तक हर सो हिवस को छोड़ मियाँ मद्देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नगारा। क्या गेहूं चावल, क्या मोट मटर, क्या आग लुमा और अंगारा, सब खाक पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये दुनिया जो है निज़ाम ऐसा ही है, आने जाने का निज़ाम है। दुनिया में आना है, फिर यहाँ कुछ करना है, और इस दौरान वक्त जो है गुजरता जाता है और इंसान जो है एक मंजिल की तरफ पहुंचता है, रवां दवा होता है। तो आपने भी एक स्टेप जो है अपनी इस तालीम का, उस स्टेप पे आप पहुंच गए हैं, अपर स्टेप पे। यहाँ से आपने अब एक नया दौर शुरू करना है आपके 12th के बाद। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो कम वक्त आपके साथ हमने गुजारा, लेकिन आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो हमारे साथ बिहेवियर रहा है, आपका जो इखलाक रहा है, हम उसकी तारीफ करते हैं। आप यू आर वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट्स। तो हमारी दुआ है कि आप आगे भी अपनी ओबीडियंस को कायम रखें। कहते हैं जिसके आदत अच्छे हैं, जिसका ओबीडियंस मीन्स कैरेक्टर, जिसके आदत अच्छे हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। तो अपने कैरेक्टर को आप अच्छा रखिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमे। कहीं पर भी आपको नाकामी नहीं होगी। शर्त यह है कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपका चाल चलन, आपका बिहेवियर, आपका बोलचाल, दूसरों के साथ उठने बैठने का ढंग ये अच्छा हो। तो बाकी ये तालीम जो है आपकी, ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये हासिल करनी है, ये ज़रूरी है। इल्म कहीं भी हासिल कीजिए, जैसे बोलते हैं ना, इल्म हासिल कीजिए चाहे मिले हो चीन में। तो इल्म जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान जो है एक जानवर की तरह है।
नॉलेज इज पावर, कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। इल्म बड़ी दौलत है। जिसके पास इल्म है वो कौम कभी दुनिया के अंदर, वो कौम कभी भी जाया नहीं होती, वो कौम कभी गर्क नहीं होती। जिस कौम के अंदर इल्म हो, जिस कौम के अंदर एजुकेशन हो। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये तालीम जो आप पढ़ रहे हैं इतना ही नहीं। दिस इज नॉट ओनली एजुकेशन, दिस इज जस्ट लिटरेसी। कुछ होती है लिटरेसी, एक होती है एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। जैसे आप पढ़ते हैं आप एजुकेशन में ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब उसका ये है कि आपने हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में, जिस भी शोबे में, जिस भी एस्पेक्ट में, लाइफ का जो एस्पेक्ट है आपका, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपने उसूल पसंदी इख्तियार करनी है। इंसाफ को मद्देनजर रखना है। जिस कौम के अंदर इंसाफ होगा, अदल होगा, चाहे वो कोई भी हो, दैट इज, जिस कौम के अंदर अदल है, इंसाफ है और दूसरों के जानिब अच्छे ख्यालात हैं, तो वो कौम कभी दुनिया के अंदर बर्बाद नहीं होगी, वो ता क़यामत कायम रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे जो आपको यहाँ पर नसीहतें मतलब सुबह मॉर्निंग असम्बलीज के दरमियान दी जाती थी मॉरल लेसन्स के तौर पे, तो आप उन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे और गौर करेंगे। ये बातें आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगी। हम लोग जो हैं, उस्ताद कराम जो है, कोई भी उस्ताद हो, कभी बच्चे को गलत गाइडेंस नहीं करता है। हमारी एक ख्वाहिश रहती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हमारे हाथों से निकले हुए बच्चे जो हैं वो आगे तरक्की करें, इस इलाके को चार चांद इसकी तरक्की को लगाएं, अपनी कोशिशों से अपने इलाके को, अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को बुलंदियों की तरफ ले जाए। ये हमारी ख्वाहिश रहती है, उस्ताद की हमेशा की ख्वाहिश रहती है। और आपके सामने भी हमारे कुछ जो निकले हुए बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, आज आपके सामने वो टीचर हैं, आपको ही पढ़ाते हैं, हमारे साथ भी बैठते हैं। हमें उस वक्त बड़ी खुशी और मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ, बहुत फख्र महसूस करते हैं जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, एज टीचर काम करते हैं, एज लेक्चरर काम करते हैं। और कुछ लोग जो है हमारे पढ़ाए हुए इस वक्त KS ऑफिसर्स भी हैं। तो हम भी ये तमन्ना करते हैं, दुआ करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग जो हैं बड़े बड़े पोस्टें हासिल करें। लेकिन पोस्टें हासिल करने का ये मकसद, जब आप खुदा करे आप बच्चों को मिल जाए वो अच्छी अच्छी पोस्टें जिनकी आपको ख्वाहिशात हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ये ना समझना कि हम बड़े आदमी होंगे। बड़ा बस अगर है तो कौन है बड़ा? बड़ा बस मेरा अल्लाह है, खुदा बड़ा है और कोई बड़ा नहीं। हमारा जब कोई पोस्ट मिल जाती है वहाँ पे इंसाफ करना है, इंसाफ को मद्देनजर रखना है, कभी भी बेइंसाफी नहीं करनी, अदल को कायम रखना है। ये हमारा उसूल होना चाहिए जिंदगी का, और ये भी यही अल्लाह को पसंद की है। तो बाकी मैंने पहले ही आपको कहा था, ये जिंदगी जो है आने जाने का नाम है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उम्र ऐसे ही तक गुजर जाती है, सुबह करते शाम करते उम्र निकल जाती है। तो इस बीच के वक़्त में जो हमने करना है, जो हमें बताया गया है वो हमने करना है। तो क्या बताया गया है? एक तो यही जो हम दुनिया का काम करते हैं, एक अल्लाह का काम भी करना है, खुदा का काम भी करना है, उसको भी मद्देनजर रखना है, वो नहीं छोड़ना है। हमारा सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी जो हमारी है वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात को अपने ऊपर उनको नाफिज करना है, उन पर चलना है। उनके बगैर अगर हम दुनिया चलाएंगे तो हमारी ये दुनिया जो है ये भी नाकामी है और आखिरत भी नाकामी है। इसलिए जिंदगी के जो उसूल हैं, जिंदगी गुजारने के जो उसूल हैं, वो हमारी रिलीजियस बुक्स के अंदर मैं आपको बार बार कहता हूँ वहाँ पर ही है। उसके अलावा आपको जिंदगी गुजारने का कोई उसूल कहीं से नहीं मिलेगा। उन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी में गुजारिए और दुनिया के अंदर हर शोबे में तरक्की कीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही साइड में लगे रहोगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी शोबा मिलता है, पढ़ाई लिखाई हो, कोई हमारा टेक्निकल जॉब हो, जहाँ भी आपने जाना है आप कीजिए, लेकिन उसूल के साथ। अपने उसूलों को बालाए ताक नहीं रखना है, बल्कि उनको अपने साथ रखना है। तो बाकी हमारी दुआ है कि आप बच्चे जो है फलें फूलें। आपका जो है आगे एग्ज़ाम आ रहा है, मार्च अप्रैल में, आप उसमें you will come and we pray for your flying colors
इन दैट एग्जामिनेशन आप फ्लाइंग कलर्स के साथ वहाँ पे आ जाइए। हमारी ये दुआ है, तमन्ना है और ख्वाहिश है। तो शायर ने कहा है, राय तलब में जज्बाए कामिल हो जिनके साथ, खुद उनको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। आपने इन छुट्टियों के दिनों में आपको अच्छा मौका मिला है पढ़ाई का, आप खुशकिस्मत लोग हैं, नहीं तो आज तक शायद आपका एग्जाम हो चुका होता। आज दिसंबर है, अक्टूबर नवंबर में ही आपका एग्जाम हो चुका होता। तो आप खुशकिस्मत हैं, आपको 2-3 महीने और मिल गए हैं। इसमें आप खूब मेहनत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहें या किसी कोई कहेगा भाई वहाँ से किताब से या पर्ची से या किसी से हम कुछ मदद लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर सलाहियतें पैदा कीजिए, अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करो कि आपको किसी पे दारोमदार नहीं रखना है। खुद अपने बलबूते पे, अपनी टांगों पे अपने पास होना है, अपने बलबूते पे पास होना है। ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे भाई ये नकलें करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग 2-3 महीने आपको मिल चुके हैं, खूब मेहनत कीजिए। अल्लाह भी आपके साथ इंशाल्लाह। जब आप मेहनत करोगे, अल्लाह पाक जो है किसी की मेहनत को है रायगा जाय सुनकर अल्लाह ताला कैसे मेहनत, तो मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर पड़ा लिखना कि हम तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुम अपने अंदर सलाहियतें पैदा करो, कामयाबी जो है आपके कदम खुद पे होगी। तो बाकी हमारी दुआ है, हम सब साथ और मेरी कोलीग्स, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग फलें फूलें, अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे और उम्र दराज करके आपको इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको उस काम में लगाए जो काम हम लोगों की, जो हमारा इलाका है, हमारे जो बेचारे पिछड़े हुए लोग, उनकी मदद के लिए आपको हमारी ये दुआ। शुक्रिया। Thank you very much, Nishad sir. Now I would like to invite Kamadin sir, please come on the stage and give us a speech on this great occasion. Respected Akhtar साहब, कामिल साहब, निशाद साहब, बाकी दीगर मेरे साथी साहिबान, अजीज तुलबा, मैंने इस 12th क्लास को तकरीबन 6-7 महीने पढ़ाया और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि वन ऑफ द बेस्ट क्लास। ये बच्चे, जब मैं दरवाजे से अंदर आता था, खुदा की कसम मुझे बेटियां नहीं है, मुझे जब इन बच्चों पर नजर पड़ती मैं कहता अगर ये 10-12 है मेरी अपनी होती कोई काम नहीं, क्योंकि 12th की बच्चियां या बच्चे, इनमें डिसिप्लिन हमने देखा। बच्चियां कभी भी 12th की बच्ची मैंने बाहर नहीं देखी अपने पूरे सेशन में, और बच्चे भी कुछ थे जो ऐसे टेम्परेरी थे, वो घूमने आते थे, मगर वो जब चले गए तो बाकी बच्चे जो यहाँ रेगुलर थे, इनका डिसिप्लिन मैंने बड़ा अच्छा देखा और इनका बात करने का तरीका बहुत मुझे प्यारा था। और जिस वक्त मैंने क्लास छोड़ी मुझे दिल नहीं कर रहा था, बाद में उस वक्त रेशनलाइजेशन पर यहाँ टीचर आए, फिर मैंने क्लास छोड़ी। अदरवाइज मुझे याद है कि मार्च से जब मैंने अप्रैल से इनकी क्लास दी, मैंने कभी भी क्लास इनकी नहीं छोड़ी। ये इन बच्चों को ही पता है। आपकी यादें तो हमें आती रही, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। हमारी भी 23-24 साल सर्विस है मेरी, मगर जैसे 12th के बच्चे थे, बाकी की बात नहीं मैं करूँगा, चाहे बच्चे थे बच्चा थी, इनमें बड़ा तहजीब था और अल्लाह करे आपको तहजीब आपके साथ साथ रहे। अब 2-3 चीजें आपने करनी है, क्योंकि आज का दिन जो है पढ़ाया हमने, जो कुछ पढ़ाया, मेरी 3-4 चीजें आप, मैं क्लास में भी कहता रहता था, आज भी कहता, ये 2-3 कोटेशंस हैं जिनको आपने बड़े दिमाग में रखना है, चाहे वो लड़की हैं या लड़की हैं।
नंबर 1, if health lost, if wealth lost, nothing lost. अगर पैसा जाता रहेगा कुछ नहीं होगा. If health lost, something lost. अगर थोड़ा हम आप बीमार हो जाएंगे, आस्ता आस्ता हम पीछे की तरफ जाते रहेंगे. लास्ट तो मरना तो सब नहीं है. If character lost, everything. अपने करेक्टर पर, चाहे लड़का हो लड़की हो, अपने करेक्टर पर आपने पूरी नजर रखनी है. पैसा आता है जाता है, पैसा आता रहेगा. जो जिसके मुकद्दर में जितना होगा वो आता रहेगा. जो मुकद्दर में नहीं होगा उसको अगर कितना भी पीछे दौड़ोगे कभी नहीं मिलेगा. दूसरी चीज मेहनत. जो ये आजकल का वक्त चल रहा है, ये कंपटीशन का जमाना है. इसमें आपने थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार करना है और मेहनत अच्छी करनी है. ऐसा ना हो कि मार्च में आप आकर ढीले हो जाओगे. आपने जाकर अपना 5, 6, 7 घंटे अपनी पढ़ाई पर लगाने हैं. तो अच्छी तरह मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको उस मेहनत का फल मिल जाएगा. अब लास्टली थोड़ा आपको महसूस करेंगे. कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे. इसके बाद कभी खामोश बैठोगे जब यहां से जाओगे, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे. हम याद आएंगे अगर तुम बुलाना भी चाहोगे. जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आता. कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे. क्योंकि जब यहाँ से इस स्कूल से एक स्टेप आपका खत्म हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आपका कॉलेज का है, तो जरूर आप हमें याद करो. कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी हमारी कमी दुनिया की हर शय में पाओगे. कहीं ना कहीं हमारी कमी पाओगे. कहीं पर भी रहेंगे हम और तुम. मोहब्बत फिर मोहब्बत है. तुम्हें हम याद आएंगे, हमें हम याद आओगे. मतलब हमें भी आप याद आओगे और आपको भी हम याद करते रहेंगे. इनकी गारंटी नहीं है. ऐसी बात नहीं. हम भी अपने उस्तादों को, जब भी उस्ताद हमें मिलते हैं हम उनको याद करते हैं. और जो बच्चे हैं ये बेस्ट जजेस हैं. यस. ऐसी बात नहीं, इनको पता है कि किस टीचर ने कैसा पढ़ाया और क्या सिस्टम है. ऐसी बात ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. और लास्ट की मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके वो खुद आपके पास आएगी. थैंक यू. I would like to invite Saddam Sheikh, please come on the stage and deliver a speech on this great occasion. जनाब प्रिंसिपल साहब, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब. समंदर की लहरों से किश्तियाँ पार नहीं होती, समंदर की लहरों से किश्तियाँ पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. सब बदल जाएंगे इसके बाद, सब बदल जाएगा इसके बाद. ये बोर्ड एग्जाम खत्म होती ही एक नई जिंदगी हमारे सामने होगी. अभी मैच्योरिटी से भरे पड़े थे हम सब अंदर से, अभी मैच्योरिटी से भरे पड़े थे हम सब अंदर से ही. अब कहीं से मैच्योरिटी भी लानी होगी. यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है जहाँ इतने साल गुजारे थे हमने. यकीन करना थोड़ा मुश्किल है जहाँ इतने साल गुजारे थे हमने, अब वहीं से जाना पड़ रहा है. हर रोज आना हुआ करता था जहाँ, हर रोज आना हुआ करता था जहाँ, अब सामने से गुजरने पर भी महज गुजरना पड़ेगा. तो परसों जैसे अख्तर साहब ने कहा था कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक वेटर आता है, हमारी सर्विस करता है, बार बार हमसे कुछ कहता है, हम उसको टिप्स देते हैं या कुछ अच्छी बातें बताते हैं,
तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। हमें कुछ भी करने को बोलते तो हम कभी करते नहीं है, हमें हमेशा अच्छी बातें सुनाते हैं और ना कभी हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमेशा हमसे कहते हैं अच्छी रास्तों पे चलो, अच्छी बातों पे अमल करो, बट हम कभी भी उनकी बातों पे अमल नहीं करते हैं। हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें जो खुद अच्छा लगता है हम वही करेंगे, मगर अगर जिंदगी में हमें सक्सेस को पाना हो तो सबसे पहले हमने अपने से बड़ों की सलाह लेना जरूरी है। शुक्रिया। I request Tulsi sir, please come on the stage and give us a speech on this great occasion. Yes, Kalvi sir, please come on the stage and give us a speech. मेरी सेहत ठीक नहीं है, गले में दर्द है, पहले से इसको हो रहा था पुराना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। लेकिन आपका आज ये फेयरवेल पार्टी है तो कोशिश हम भी करेंगे आखिर में चंद अल्फाज आपके सामने रखें। वैसे आप इसको अभी आज फेयरवेल नहीं समझेंगे क्योंकि आपका सेशन अभी ऑफ नहीं है। एज far as the calendar of education department is concerned, your examination will be held in the month of April, not in the month of March. That too on the second week of April. तो आप इस चीज को ये नहीं समझो कि बस आज लास्ट डे है आपका। आपके हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस में भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, ऐसे भी अपने जितने भी लेक्चर साहिबान हैं या उस्ताद इकराम आपको पढ़ाते हैं कंसर्न सब्जेक्ट के, तो ऑनलाइन इनको थोड़ा बहुत क्लासेस देते रहेंगे छुट्टियों में भी, तो ताकि आप अपडेट रहेंगे। और उसके बाद मार्च में 1 मार्च से सीधा आपकी क्लास में जैसे रूटीन में चलती थी वैसे चलेगी अप टू 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से पहले आपको ऑफ किया जाएगा प्रिपरेटरी हॉलीडेज के लिए। लेकिन मार्च का महीना तो आपका पूरा है जिसमें आपकी जितने भी जो लूपहोल्स, जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी, लूपहोल्स रहते होंगे, कोई किसी चैप्टर के बारे में कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो आप उसमें भी मार्च में क्लियर कर सकते हो, पूरा महीना आपके पास बचा है। लेकिन बात ये है कि आप छोड़ नहीं देंगे बुक्स अपनी, बिल्कुल आप आउट ऑफ टच ना हो जाएं। ये जो आपका 1-1.5 महीना है, 2 महीने, इसमें बिल्कुल आप क्लास किताबें बंद करके बैठ न जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है जैसे गेम ऑफ चांस। लेकिन इंसान अगर मेहनत करेगा तभी तो गेम में इंसान सक्सीड कर सकता है। तो हार्ड वर्क जिसने नहीं किया वो किसी भी काम में सक्सीड नहीं हो पाता है। तो इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुप के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महज पर मुझे उन सबको में तलाश कर। रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर, सीनियर लेक्चरर जफर काजिम वानी सर, सीनियर लेक्चरर निशात अहमद वानी सर, मास्टर कमरदीन साहब, मास्टर मुश्ताक साहब, मास्टर रशीद साहब, मास्टर गजर सिंह जी और बाकी हमारे टीचर साहिबान, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबने बोल दिया अपना अपना, मुझे तो टाइम बहुत कम मिला आपके साथ, लगभग 1-1.5 महीना। मेरा भी आज रिव्यूइंग ऑर्डर हुआ है यहाँ से जाने का, आपके साथ ही मैं जा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए एक भी दुआ करता हूँ, आप फॉलो करो, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको खुशी मिले। Whatever you want in life, may Allah give you everything, मैं यही दुआ करूंगा। बाकी एग्जाम आपको आ रहे हैं, मेहनत करो। सबने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको, टीचर्स ने, लेक्चरर साहिबान ने, मास्टर्स ने, जो भी यहाँ पे तैनात था उन्हें आपको बहुत अच्छा पढ़ाया। मगर अब आपका इसमें आप कितनी आप मेहनत करते हो, क्या इसका रिजल्ट लाते हो आप तक है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बस यही आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ। टाइम कम है, टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि वो कहते हैं टाइम इज टाइम, वेट फॉर मी। किश्तियाँ पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी रात नहीं होती। सब बदल जाएंगे इसके बाद, सब बदल जाएगा इसके बाद। ये बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही एक नई जिंदगी हमारे सामने होगी। अभी मैच्योरिटी से भरे पड़े थे हम सब अंदर से, अभी
मैच्योरिटी से भरे पड़े थे सब, हम सब अंदर से ही, अब कहीं से मैच्योरिटी भी लानी होगी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ इतने साल गुजारे थे हमने। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ इतने साल गुजारे थे हमने, अब वहीं से जाना पड़ रहा है। हर रोज आना हुआ करता था जहाँ, हर रोज आना हुआ करता था जहाँ, अब सामने से गुजरने पर भी महज गुजरना पड़ेगा। तो परसों जैसे अख्तर साहब ने कहा था कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक वेटर आता है, हमारी सर्विस करता है, बार बार हमसे कुछ कहता है, हम उसको टिप्स देते हैं या कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। हमें कुछ भी करने को बोलते तो हम कभी करते नहीं है, हमें हमेशा अच्छी बातें सुनाते हैं और ना कभी हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमेशा हमसे कहते हैं अच्छी रास्तों पे चलो, अच्छी बातों पे अमल करो, बट हम कभी भी उनकी बातों पे अमल नहीं करते हैं। हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें जो खुद अच्छा लगता है हम वही करेंगे, मगर अगर जिंदगी में हमें सक्सेस को पाना हो तो सबसे पहले हमने अपने से बड़ों की सलाह लेना शुरू किया। Thanks, Sudham. Now I request Kusi sir, please come on the stage and give us a speech on this great piece. And Charge Principal Sir, Nishad Sir, lecturers, masters, teachers और प्यारे बच्चों, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं। घर एक हमेशा रहता है, मेहमान बदलते रहते हैं। जैसे आज हमारे 12th क्लास के बच्चे जो उनका स्कूल लाइफ थी, क्योंकि स्कूल लाइफ एक अलग लाइफ होती है और इसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ आई, किया ही कुछ नहीं है। अभी तो जस्ट आप स्कूल लाइफ से निकले हो, यहाँ से आपने अपने कॉलेजेस में जाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जाओगे, यूनिवर्सिटीज के बाद आपने कॉम्पिटिशन करना है बाकी के साथ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी अपने प्रोफेशनल जो भी फील्ड लाइन में उसमें आपने जाना है, तो आप मेहनत करोगे तब जाके वहाँ पे पहुँच पाओगे। तो टाइम बहुत कम है, तो मैं लास्ट में आपके लिए एक शेर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, बच्चों के लिए खासकर, कि तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी। आपके लिए मेरे तरफ से दुआ ही समझ लो। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, खुशियों से भरे हो हर पल। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी और खुशियों से भरे हो हर पल। दामन में भी छोटा लगने लगे, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला आपका पल। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Kulsi sir. Now I request Zafar Mali sir, please come on the stage and give us a occasion. इज्जत इमाम, अख्तर सर, निशाद सर, अदीब हुसैन राम, अजीज तुलबात, शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे जहां और की। अजीज तुलबात, पहले मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बच्चों ने उस्ताद के तय जो हमदर्दी दिखाई कि 12 सालों में जो आपने सीखा है और इसके बाद आगे आपने कॉलेज लाइफ में जाना है, तो ये आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपके पास बहुत कम वक्त है। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपके पास ये 2-2.5 महीने हैं, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में। तो मैं खासकर आप बच्चों को खुशी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे आप पाएंगे। फिर गो एट योर प्लेसेस, टेक योर बुक्स एंड वर्क हार्ड। इंशाल्लाह you will get success in 5 colors.
Thanks. Thank you so much, Professor. Thank you. Now I request everyone to forgive us in the case if we have hurt you during our school days. Sorry for that. In the end, I would like to thank all the staff members and their friends, and also thanks to management committee and also those who contributed in this farewell party. Lastly, I on behalf of the class invite staff members to have a lunch with us. Thanks.